Here we go. अच्छा, अब the thing is कि dative bond is a kind of covalent bond because इसका जो full name है वो coordinate covalent bond है. तो मैंने बताया था कि it's a kind of covalent bond where the electrons are in fact shared between the atoms, like जैसे covalent bond में sharing होती है. But the difference is कि in the shared pair of electron, both the electrons would actually come from one atom. Like dot and cross में तो एक atom एक electron देता है, दूसरा दूसरा देता है. So then they share. But जब covalent dative bond बनता है, so both the electrons are same and in fact they come from one atom, and then they are shared between the two atoms. So after that it's the shared pair, लेकिन eventually the electrons have come from one atom. तो उसके लिए we show it by an arrow. और उसकी एक एग्जांपल आई रिमेंबर वी डन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड, आई गेस ऑनलाइन क्लास में मैंने कराई थी, तो उससे थोड़ा आगे हम मूव करते हैं. ज़रा ऑनलाइन की स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाए, फिर मुझे बीच में याद नहीं रहता कि मैंने अलाउ करना है क्लास में स्टूडेंट, मुझे पता भी नहीं चलता इसको मैं साउंड ऑन कर दूँ या नहीं. So those who have joined just now, we done this dative bond. We started with this dative bond last time towards the end of class on Friday, I guess. तो उसमें मैं बता रहा था कि it's the bond which is formed by the sharing of electron while both the electrons in the shared pair are donated by one atom, और जो atom electron donate करता है उसको हम बोलते हैं ligand, right? Ligand की मैंने definition भी लिखवाई थी अलग से उस दिन कि ligand is that particle, which could be atom, ion or a molecule even, which has at least one lone pair of electron. तो lone pair वो होता है जो bonding में participate नहीं करता, right? Like ammonia has one lone pair at the nitrogen atom. Water में two lone pairs होते हैं वो oxygen पे. तो जो bonding में participate नहीं कर रहे electron उनको हम बोलते हैं lone pairs. तो ligand वो होता है जिसके पास extra electrons होते हैं. I mean bonding करने के बाद भी it still has some extra electrons with it. और वो दूसरे को ऑफर कर देता है कि आप भी यूज कर लो, रादर उससे शेयर कर लेता है. तो डेटिव बॉन्ड इज नॉट अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड से काफी वीक है और इट इज फॉर्म्ड व्हेन द टाइम और देयर इज अ नीड, बट नॉर्मली व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक तो डेटिव बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक हो जाता है. उस दिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल मैंने की थी उससे आगे आई गेस आई सेड दिस द अदर डे आल्सो कि we have about 4 or 5 examples in total in our syllabus, and examiners, the good thing is that they don't go beyond these examples in this topic, because still students do mistakes when they draw them in paper. इसको आप इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लें क्लास में जो हम कर रहे हैं कि आपको पेपर में आए तो आप यू आर नॉट थिंकिंग कि जी इसमें डेटिव बॉन्ड बनना है कि नहीं बनना, तो दैट शुड नॉट हैपन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद द नेक्स्ट वन इज अमोनियम. इसी के आगे ऐड कर लें अमोनियम NH4. NH4 पॉजिटिव. अच्छा, एक होता है अमोनिया और एक है अमोनियम, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द टू. अमोनिया इज लाइक NH3, दैट्स अ मॉलिक्यूल एंड स्टेबल गैस, एंड अमोनिया डज नॉट हैव एनी डेटिव बॉन्ड इन इट. बट जब इसका आयन बनता है that's ammonium ion and that is like NH4 positive. So ammonium, ammonia, दोनों में फर्क है. Ammonium is the ion which actually has this dative bond in it. अच्छा, ammonium ion का जो डॉट क्रॉस और स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, आप लोग उसको समझें फिर ड्रॉ करें मेरे साथ और फिर क्वेश्चन भी पूछें. So this ammonium ion is formed when NH3, I'll use a bigger marker. When NH3 ammonia combines with a proton, हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन आयन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है. आई मीन हाइड्रोजन आयन हैज नथिंग इन इट, जस्ट अ प्रोटॉन. वही मैं बताता हूँ वो कैसे. तो when ammonia combines with hydrogen ion it forms NH4 positive. So एक चीज इंटरेस्टिंगली it's not difficult in dative bond concept. जो मैं कह रहा था वो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछते हैं बार बार, although examiner doesn't ask it, they could ask that question. I mean
हाउ वुड दिस पॉजिटिव चार्ज कम ऑन NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, अभी तो नहीं पूछते, जब मैं इसका डॉट क्रॉस बनाऊंगा तो काफी स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार, तो उसको मैं पहले इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में भी कर दूंगा। सी अमोनिया NH3 डज नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट, ठीक है, ये न्यूट्रल है ओवरऑल, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें मैं +1 ऐड कर रहा हूँ, सो एन अमोनिया हैज नो चार्ज, 0, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ +1, तो 0 + 1 वुड बी +1, राइट। तो जो केमिस्ट्री में हम चार्जेस लगाते हैं ना प्रोडक्ट्स पे, देयर एक्चुअली द मैथमेटिकल सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स के ऊपर चार्जेस होते हैं उनका न्यूमेरिकल सम होता है वो। इसमें केमिस्ट्री कोई नहीं है कि आप ये सोचें कि इस पे नेगेटिव चार्ज किसे आ गया, ये चार्ज डिसअपेयर कैसे हो गया, तो वो मैथमेटिकली जो रिएक्टेंट्स के चार्जेस हैं वो ऐड हो रहे होते हैं बस। तो इट्स लाइक अमोनिया 0 + 1 + 1. So if I had a positive ion and negative ion coming together, the product would be 0. +1 -1 0, right? तो ये चीज होगी जो आगे कुछ एग्जाम्पल में आपको नजर आएगी। तो आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें कोई केमिस्ट्री की चीज नहीं है, ये सिर्फ रिएक्टेंट का चार्ज ऐड होके जो बच रहा होता है वो प्रोडक्ट में हम लिख देते हैं। अच्छा, अब अमोनियम आयन का जो स्ट्रक्चर है उसको जरा समझें, पहले आप लोग समझ लें जो ऑनलाइन भी बैठे हैं, स्पेशली मैं ड्रॉ कर दूंगा, समझा दूंगा, तो फिर आपने इसको कॉपी कर लेना, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग इट डाउन सिंपली, क्योंकि आई विल गिव यू ऑल द टाइम टू कॉपी। NH3 का अगर मैं डॉट क्रॉस ड्रॉ करता हूँ, तो अमोनिया में नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से शेयर करता है और 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। एंड देन नाइट्रोजन, बिकॉज इट्स इन ग्रुप 5, तो नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन आई हैव शोन सर्कल्स फॉर नाइट्रोजन, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए और एक पेयर नाइट्रोजन पे पड़ा हुआ है, लोन पेयर, एंड दिस इज लाइक अमोनिया। अब व्हाट्स प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन बेसिकली क्या होता है, इट्स जस्ट अ प्रोटॉन, इसको हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन आयन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज 1 and 1, उसका मास नंबर भी 1 है और प्रोटॉन नंबर भी 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में देयर इज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर हाइड्रोजन से ये एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दूं, तो इट वुड बिकम H पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लॉस से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इट बिकम्स H पॉजिटिव -1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा अ प्रोटॉन ओनली। सो H पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट सिंगल प्रोटॉन। अच्छा, अब हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यू गाइस नो इट फॉलोज डुप्लेट रूल, एक होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इज के यू नीड टू गिव 8 इलेक्ट्रॉन्स to an atom to complete its valence shell, but the duplet rule is that you need to give 2 electrons to the atom to complete its valence shell, so hydrogen follows duplet rule. अब जब आपने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो भी निकाल दिया, तो प्रोटॉन आयन को अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के, इन टोटल 2, राइट। हाइड्रोजन एटम नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज नॉट हाइड्रोजन एटम, इट इज प्रोटॉन, हाइड्रोजन का आयन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए। सो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन इनफैक्ट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑफर करने के लिए है ही नहीं। तो अब ये जब आता है इसके पास अमोनिया के, without having any electrons on it, so what ammonia will do, it would simply offer its lone pair to this proton for a dative bond, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऑफर कर देगा नाइट्रोजन। अच्छा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने ऑफर करेगा, तो दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑफ नाइट्रोजन, बाय द वे वी वुड शो इट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड वी पुट एन एरो एज वेल, लाइक वो जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का उसको इस तरह से हम लगा देते हैं इन बिटवीन दीज टू, विच इज एक्चुअली ऑफर्ड बाय नाइट्रोजन बाय द वे, और हाइड्रोजन की तरफ एरो विल बी पॉइंटिंग। द एरो फॉर द डेटिव बॉन्ड रेफर्स टू द फैक्ट के ये एटम इसको इलेक्ट्रॉन ऑफर कर रहा है पूरा पेयर, तो इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी बोथ सेम, डॉट्स और क्रॉस। सो दिस इज लाइक द डॉट क्रॉस ऑफ NH4 आयन, ये वाला जो है पूरा।
अब इस पे बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज हैज कम विद प्रोटॉन, तो द होल थिंग विल बी पॉजिटिव। तो वही पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर अपेयर हो रहा है इधर, उसको हम ब्रैकेट लगा के बाहर दिखा देते हैं। अब इस जगह पे स्टूडेंट समटाइम पूछते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कैसे? तो ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के थे जो उसने उससे शेयर किए हैं बस। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बीइंग लॉस्ट, I mean these electrons are shared between nitrogen and hydrogen, so the negative charge is out of question क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट थे इस पे, वो इससे बस शेयर कर रहा है। और जो चार्ज +1 है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यू आर एडिंग अ न्यूट्रल थिंग विद अ पॉजिटिव आयन, तो ओवरऑल इट विल स्टिल हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो ये तो इसका डॉट क्रॉस है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इट वुड बी 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन अमोनिया ऑलरेडी, तो 3 सिंगल लाइंस बना देंगे हम इस तरह, और एक उसका जो डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड का आप एरो लगाओगे, और एरो के साथ हमने इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करने एंड द चार्ज। सो दिस इज इट्स डॉट क्रॉस, NH4 का डॉट क्रॉस, दिस इज इट्स डिस्प्लेड स्ट्रक्चर। बट एक चीज जो आपने नोट करनी है वो ये कि डॉट क्रॉस में डेटिव बॉन्ड का एरो भी दिखाएंगे, ठीक है, बाकी बॉन्ड्स के लाइंस नहीं लगाई हमने। और जो डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है उसमें विद लाइंस वी शो द इलेक्ट्रॉन्स आउट, ठीक है। डेटिव बॉन्ड का एरो और इलेक्ट्रॉन सब जगह शो करेंगे, बस इतनी सी याद रखेंगे बात, ठीक है। अब आप लोग इसको कॉपी भी कर लें और जिनके क्वेश्चंस हैं वो पूछ भी लें प्लीज बात साथ साथ। दिस इज लाइक डॉट क्रॉस ऑफ अमोनियम, दिस इज डिस्प्लेड। ऊपर जो ये जो इक्वेशन टाइप मैंने लिखी है, इसको अगर आप नोट नहीं भी करते तो इट्स ऑल राइट, पेपर में बस आपने डॉट क्रॉस और डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली ड्रॉ करना है बस। So this is third example because the second is ammonium और फर्स्ट हमने की थी कार्बन मोनोऑक्साइड की। मैं उसको फिर से ड्रॉ कर दूंगा, अगर किसी ने मिस की हुई है क्लास के एंड पे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये नंबरिंग मैं उसके सीक्वेंस में कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है बेटा ऑनलाइन जो बैठे हैं आप लोग भी पूछ लें, मैं एक दफा इसको क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। NH3 इज अ हैप्पी स्टेबल मॉलिक्यूल। NH3 को बॉन्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज NH3 में अगर आप नोट करें तो नाइट्रोजन हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ईच हाइड्रोजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, but it is this proton ion which has no electrons with it, and when it comes close to ammonia which is a stable molecule, तो वो अमोनिया को फोर्स करता है कि give me electrons and start of make a bond with me। तो उसके लिए फिर नाइट्रोजन के पास जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो उसके साथ ऑफर करके पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन डेटिव बॉन्ड बना लेता है। अब यू कुड इमेजिन कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने से शेयर किया है, इट इज एक्चुअली नॉट द नीड ऑफ नाइट्रोजन टू मेक अ बॉन्ड। नाइट्रोजन को तो कोई जरूरत ही नहीं बॉन्डिंग की क्योंकि वो स्टेबल था। तो अगर आपसे कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछे कि जी विच वन ऑफ दीज 4 बॉन्ड्स 1 2 3 4, इनमें से सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, आई मीन व्हेन वी हीट अमोनियम आयन, तो विच बॉन्ड विल ब्रेक फर्स्ट? तो इट वुड बी द डेटिव बॉन्ड, क्योंकि वो एक तरह से अनवांटेड बॉन्ड है जो नाइट्रोजन ने बस जबरदस्ती बना लिया कह ले प्रोटॉन से। दीज आर स्ट्रॉन्ग स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये ब्रेक नहीं होंगे। तो इस पॉइंट को आप कहीं लिख भी सकते हैं कि डेटिव, अगर नहीं लिखा इससे पहले इसको लिख सकते हैं कि डेटिव बॉन्ड इज वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, फिर दूसरा एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं कि हाउ मेनी और व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम फॉर एग्जांपल। तो अमोनियम में अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी टाइप के बॉन्ड्स हैं या व्हाट सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ द ईच टाइप इज, तो आप क्या बताओगे? देयर आर 3 single covalent bonds and 1 dative bond, so there are total 4 bonds. 3 of them are covalent, single covalent, and 1 is dative, right? These are kind of statement based questions जहां पर examiner आपसे कहता है which of the following statement is correct about ammonium ion for example। तो उधर कई स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, उस तरह की स्टेटमेंट में ऐसी चीजें आती हैं।
अच्छा, अब द रिक्वायरमेंट एट दिस स्टेज इज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑब्वियसली बाय द एग्जामिनर्स कि स्टूडेंट को ये चीज़ इतनी अच्छी पता हो कि विदाउट इवन ड्राइंग द स्ट्रक्चर दे नो इन माइंड के अमोनियम के कितने बॉन्ड होते हैं और उसमें कौन सी टाइप है। क्योंकि अगर आप इसको आपको अगर याद नहीं है पेपर में तो फिर आप उसको ड्रॉ करके देखोगे एंड इट विल टेक टाइम टू चेक ईच स्टेटमेंट ऑब्वियसली, राइट। अब एक एमसीक्यूज का जो क्वेश्चन आपके टेक्निकली उसको 1 मिनट आप रफली कह सकते हो, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होते हैं तो उस पर 1.5 मिनट चला जाता है। बट अगर आप उस हर क्वेश्चन पे 2 मिनट्स लगा रहे हो तो यू कुड हार्डली सॉल्व 30 क्वेश्चंस कंफर्टेबली परहैप्स, या उससे कम। तो बाकी फिर आप टिक करोगे रफली। तो इसलिए आपने जो एग्जाम्पल सिलेबस की होती है उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करें कि पेपर में बैठ के आप सोच नहीं रहे चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, उससे टाइम बचता है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल हम करेंगे, दैट इज ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम, OXONIUM, ऑक्सोनियम, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं और इट्स लाइक H3O प्लस H3O पॉजिटिव। ऑक्सोनियम, जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इट बिकम्स ऑक्सोनियम। अच्छा, बाय द वे ये आयंस आपके सिलेबस में है। When I say it's in syllabus, it means कि examiner could simply give you this word in paper, question में दे सकता है, draw dot cross of oxonium। अब अमोनियम तो आप O level IGCSE से पढ़ लिया आपने, तो this is something which is very common ion, but we don't take its name। नॉर्मली हम इसको नाम से नहीं बुलाते, हम H3O प्लस कह देते हैं, लेकिन इसका नाम याद रखेंगे। अच्छा, ये बनता है जब वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन से कंबाइन करता है, ये जो H पॉजिटिव है जब ये वाटर से बॉन्डिंग करता है तो दैट्स व्हेन वी गेट दिस H3O प्लस। अब जो लॉजिक मैंने इधर बताई थी चार्ज वाली, वही लॉजिक आपने इधर अप्लाई करके सोचना है कि इसका चार्ज कैसे आ रहा है। तो आप देखें वाटर पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल वाटर इज अ जीरो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, so you are simply adding +1 to 0, so we expect a positive charge। अच्छा, पहले इसमें there were 2 hydrogens, so after getting third hydrogen it becomes H3 plus, right। तो 3 हाइड्रोजन वहां से आगे, जैसे अमोनियम में 3 हाइड्रोजन अमोनिया में थे, एक और ऐड हुआ तो 4 हो गए। तो ये फॉर्मूला उसी तरह बन रहा है, चार्ज उसी तरह डिसाइड हुआ है। अच्छा, अब जब मैं ऑक्सोनियम आयन का डॉट क्रॉस और डिस्प्ले ड्रॉ करूंगा, I need to imagine water molecule initially। Water molecule में we have 2 hydrogens covalently bonded with oxygen, right। So one oxygen has 2 hydrogens covalently bonded. अब oxygen is in group 6, so it has like 6 electrons in its valence shell। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से ऑक्सीजन ने 2 इधर यूज कर लिए, डॉट्स प्रेफरेबली हम मिडल वाले एटम को देते हैं, and 4 electrons in form of 2 pairs are still left with oxygen। like ऑक्सीजन के पास जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से 2 उसने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में यूज किए हैं and 4 electrons in 2 pairs are still present with it, it's like lone pairs। so oxygen has 2 lone pairs with it and it is like complete and stable molecule because oxygen का outer shell अगर आप देखें तो 2 4 6 8 complete, hydrogens stable with 2 electrons duplet, but then comes this proton जिसके पास है ही कुछ नहीं, just single nucleus proton। तो ये जब आएगा वाटर में ऑक्सीजन के पास तो it would actually want to have electrons because इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जी बेटा, क्वेश्चन है, पूछें अबीर। डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा, डेटिव बॉन्ड फॉर्म करेगा, वाटर विल बी फॉर्मिंग अ डेटिव बॉन्ड विद द न्यू थर्ड हाइड्रोजन ऑब्वियसली। तो एक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द 2 पेयर वी वुड शो 1 पेयर बीइंग शेयर्ड विद दिस प्रोटॉन। तो आपने करना ही है कि थर्ड प्रोटॉन ऐसे ड्रॉ करके उसके साथ ही सामने और एरो से आप पेयर को एरो पे ड्रॉ कर देंगे, लाइक दैट 1 पेयर आई जस्ट शो इट हियर on the arrow indicating कि oxygen is offering its lone pair to the hydrogen and the whole thing is like still positively charged। shape नहीं, we are not doing shapes at the moment। I mean when we
learn shapes of molecules, तो all of these molecules have certain geometry, no doubt. लेकिन जब आपको पेपर में सिर्फ आता है ना draw dot cross, तो फिर आपको एंगल और शेप के ऊपर कोई नहीं पूछ रहा. बट इफ द क्वेश्चन है सेट draw dot cross of ammonium or oxonium, also highlight its shape, फिर आपको शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी साथ. तो अब जब शेप्स का टॉपिक हम पढ़ लेंगे तो फिर यू कैन एनी टाइम ड्रॉ डॉट क्रॉस अलोंग विद शेप. बट द क्वेश्चंस नॉर्मली डोंट कम दैट वे. जब क्वेश्चन शेप से रिलेटेड होता है तो एग्जामिनर क्लियरली उस पर फोकस कर रहा होता है कि ड्रॉ द शेप एंड गिव एंगल एंड नेम द शेप. लेकिन जब उन्होंने सिर्फ डॉट क्रॉस मांगना होता है तो उसमें वो आप 90 डिग्री पे बनाओ, 80 पे बनाओ, इसमें मसला नहीं है. जब क्वेश्चन में एंगल और शेप की बात हो जाएगी फिर वो नहीं ड्रॉ किया तो मार्क्स कटेंगे. जब डॉट क्रॉस है, शेप नहीं पूछी, तो वी शुड रादर नॉट ड्रॉ रॉन्ग शेप एंड शो इट स्ट्रेट अवे जैसे बुक्स में बना होता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे. Excuse me, sir. जी बेटा. Can there be more than one dative bond? गुड. देखो ये मुझे पता था कोई क्वेश्चन पूछेगा. इनफैक्ट इट वाज माय क्वेश्चन अबीर व्हिच यू स्टोल. अभी इसको डिस्कस करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन जो आपने पूछा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, ये तो इसका डॉट क्रॉस हो गया और साथ ही पहले हम इसका डिस्प्लेड भी बना लेते हैं. तो ऑक्सोनियम में देयर आर 2 कोवलेंट बॉन्ड्स एंड 1 डेटिव बॉन्ड, राइट? तो वी वुड शो 2 सिंगल लाइंस विद हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन and then a dative bond with a lone pair or charge. So dot cross and displayed, और structure भी कहते हैं हम इसको. displayed कह लें, structure कह लें, तो both are same. लेकिन जैसे यमुना आपने क्वेश्चन पूछा है, अगर if the question is said draw the shape highlighting the structure of the molecule and dot cross and everything, तो इसमें तो वो नहीं बन सकती. फिर इसमें आपको वाटर के अराउंड इसको बेंड ड्रॉ करते हैं और ट्राइगोनल प्लानर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये बन जाएगा. फिर आपने अगर उसने 3D बोल दिया तो फिर ये ब्रॉड लाइन और डॉटेड लाइन. तो विल स्टडी द शेप. आई मीन बॉन्डिंग में अगला टॉपिक हमारा 1-2 टॉपिक के बाद आ जाएगा. तो आपने बस क्वेश्चन पढ़ना. अगर शेप की बात हुई है तो फिर शेप पे हाईलाइट करेंगे, एंगल भी लेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं. अच्छा, अबीर आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको पहले एक तो सबको एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं उसका आंसर आप लोग ही शायद बता सकते हैं. So in water we had 2 lone pairs on oxygen and oxygen is like bonding with one of the proton already. That brings positive charge on the whole thing. It becomes H3O plus now. अब the question Abir has asked, आप सब लोग भी सुने उसको और फिर try and answer that. The question is कि in H3O plus we still have a lone pair of electron on oxygen, right? इधर. So the question is कि can this H3O plus make another dative bond with another proton? I mean theoretically we are trying to say कि ये जो H3O plus है, H3O plus है, अगर इसको मैं एक और प्रोटॉन से बॉन्ड करा दूं because it still has a lone pair, तो पहले तो आप लोग मुझे बताएं, सब लोग ट्राई करें, what should be the formula of the product and the charge? I mean, if there is any bonding like that, theoretically, so what would be the product here? क्या होगा बताओ शाबाश सारे. This H3O2 plus. नहीं, वो तो पहले ही है. रिपेल करेगा. 4O. हाँ, एक हाइड्रोजन और ऐड करना है आपको इसमें. So it would become H4O and how much charge? That's 2. 1 plus 1 plus. तो जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, न्यूमेरिकल सम है रिएक्टेंट्स का, तो 1 plus 1 plus product will be 2 plus. So this is what we are trying to do here. Ab the answer to your question, Abir, is that this is not possible. I mean oxonium won't accept another proton. नहीं बनेगा. That's why examiners don't ask this question even. My question in addition is, you guys try and tell me why this reaction does not happen. ये क्यों नहीं? वो रिपेल करेगा. राबिया ने कहा. गुड, वेरी गुड जी. और भी कोई सोच के बताए. इसमें भी केमिस्ट्री नहीं है बाय द वे. जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इट्स वेरी बेसिक साइंस क्वेश्चन. These two particles cannot bond because they both carry same charge, right? So they repel each other.
So the bonding is all based on the energetics of the particles. Okay, whether they attract each other enough so that the bonding could happen or not. But अगर repulsion strong है, तो such particles don't come together, right? एक तो bond भी weak है dative, तो ये reaction इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें repulsion dominate होती है, तो fourth hydrogen नहीं आएगा इधर. तो H3O plus से H4O plus नहीं बनता. अच्छा, this thing is interestingly examiner has never asked this thing. बट ये पूछ सकते हैं आपसे कि कंसिडरिंग H3O पॉजिटिव सजेस्ट इफ पॉसिबल H4O2 पॉजिटिव कैन बी फॉर्म्ड और नॉट. तो फिर आपने उधर कमेंट करना है कि नहीं बनेगा, या अगर एग्जामिनर ने कह दिया कि नहीं बनता तो बताओ क्यों नहीं बनता, फिर आप रिपल्शन वाली बात बता दो. ठीक है कि नहीं इसलिए नहीं बनता बिकॉज द पार्टिकल्स हैव एनफ रिपल्शन इन देम. अच्छा, अब ये एग्जांपल होगी. लेट्स मूव फर्दर. इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा आप पूछ लें सो दैट इफ आई इरेज इट तो फिर दोबारा ड्रॉ ना करना पड़े मुझे. अच्छा, अब the next example is a dimer molecule, and that's actually NH3BF3. NH3BF3, it's a dimer. Acha, dimer is like a molecule made up of two molecules. So a dimer is a molecule consisting of two molecules. So you need to know this, by the way. Dimer की sort of निशानी या definition क्या ले, तो आपसे MCQs में एग्जामिनर कह देता है कि दिस मॉलिक्यूल इज अ डायमर, तो उससे आपको हिंट मिल जाता है. अच्छा, जो MER वर्ड है, मर, इन लैटिन इट रेफर्स टू अ मॉलिक्यूल. ठीक है, मर लैटिन में मॉलिक्यूल, उर्दू में तो वैसे इसका और मीनिंग बनता है. तो मोनोमर एक मॉलिक्यूल, डायमर टू मॉलिक्यूल, trimer, polymer, right? Polymer, a big molecule made up of many molecules. तो ये टर्म इस तरह से चलती है. तो डायमर वो मॉलिक्यूल होता है जो दो से बनता है. अच्छा, अब दो से कैसे बना? It's like NH3BF3 is formed from two molecules which is like ammonia and BF3. So ammonia and BF3 come together to make this NH3BF3. अच्छा, अब आप देखें कि अमोनिया पे भी कोई चार्ज नहीं है, जीरो. BF3 पे भी कोई चार्ज नहीं है. दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट हैज नो चार्ज. ठीक है ना? तो चार्जेस की जो कैलकुलेशन है वो मैथमेटिकली बस हम कर रहे हैं. अच्छा, अब आई वुड रियली वांट कि आप लोग जरा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. अमोनिया भी हमने बनाया हुआ है पहले, BF3 भी ड्रॉ किया था लास्ट वीक में ऑक्टेट एक्सपेंशन में, जहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी. मॉलिक्यूल्स नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट, राइट? उसमें BF3 आपको मिलेगा. तो उसमें आपने करना ये है कि पहले आप अमोनिया ड्रॉ कर लें, देन ड्रॉ BF3 डॉट क्रॉस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन यू वुड फिगर आउट के बिटवीन NH3 एंड BF3 which molecule will be the ligand molecule and which would be the acceptor one. लोन पे ऑफर कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस बिकॉज पेपर में कोई अनसीन एग्जाम्पल आ सकती है, उधर यही स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते. स्टार्ट. ड्रॉ NH3 एंड BF3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली. सब लोग ट्राई करें, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो लोग भी ट्राई करें. वैसे अगर आपको स्ट्रक्चर्स उनके याद नहीं है या नोट्स में पूरे नहीं है, तो नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7, हाइड्रोजन 1, बोरॉन 5, फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9. ठीक है, प्रोटॉन नंबर्स मैंने लिख दिए साइड पे, इनको यूज कर सकते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे बस. NH3 और BF3 का तो बना लिया स्ट्रक्चर. NH3 होगा, सॉरी, डॉट क्रॉस डायग्राम. हाँ, NH3 होगा लाइगेंड, और BF3 वुड बी फिर क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता बॉन्ड उसके सारे. ठीक हो गया. बस डॉट क्रॉस ड्रॉ करें और डिस्प्लेड या स्ट्रक्चर भी ड्रॉ.
So you would see that this boron's outer shell is not complete even after bonding with 3 fluorines. So naturally boron would be the one which will be accepting electrons from ammonia, nitrogen. So if someone is done, could you try and tell me कि NH3BF3 में how many total bonds do you have? जो पूरा डायमर है उसमें टोटल कितने bonds? 7. 7 bonds, 1 dative bond. 7 bonds. 7. Good. And of the 7 bonds, 6 of them are single covalent Covalent. and one of that is dative bond, right? Or Yes, sir. in the dimer, NH3 is the ligand molecule, right? Ligand, the one that is offering the electrons. क्योंकि BF3 तो हो ही नहीं सकता ligand, इसके outer shell में lone pair है ही नहीं. Ligand के पास minimum 1 lone pair होना must है, ठीक है? तो ammonia, I mean ammonia is ligand even in ammonium example, जो इससे पहले हमने NH4 plus किया था आज, उसमें भी आपने देखा ammonia ligand है. तो if a particle is ligand once, it can be ligand all the time. राइट ये नहीं होगा कि आगे जाके कहीं वो ligand नहीं रहेगा अनलेस कि उसमें से इलेक्ट्रॉन आपने खुद कम कर दिए हों ठीक है ना अमोनिया वाटर आर द कॉमन ligands तो मतलब पहले भी एग्जांपल करने से पहले भी आई कैन से कि इसमें अमोनिया ligand होगा अच्छा जब ये अमोनिया का डॉट क्रॉस है ये BF3 का है अब नाइट्रोजन ऑफर्स इट्स लोन पेयर टू द बोरॉन अब इसमें करना सिर्फ ये है मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये आई डोंट वांट टू से इट्स अ मिस्टेक बट ट्राई नॉट टू डू दैट इन एग्जाम और वो क्या है कि अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स डॉट्स हैं तो ट्राई एंड कीप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन डिफरेंट क्रॉस क्योंकि जब आप इसका ये लोन पेयर ऑफर करोगे इसको एरो पे तो इट वुड बी लाइक डॉट्स फ्रॉम नाइट्रोजन एंड क्रॉस फ्रॉम बोरॉन बॉन्डिंग एटम के इलेक्ट्रॉन इसके भी डॉट और इसके भी डॉट प्रेफरेबली हम नहीं करते जो बॉन्डिंग एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स वी ट्राई एंड कीप डिफरेंट डॉट्स फॉर वन क्रॉस फॉर द अदर ऑल्दो डेटिव बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे क्योंकि एक ही एटम से आ रहे हैं अब अगर आपने बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस दिखा दिया तो फ्लोरीन बिकम्स डॉट्स एंड दैट्स परफेक्टली फाइन एंड अगर किसी ने फ्लोरीन के आउटर शेल कंप्लीट नहीं ड्रॉ किए तो इट्स इनकम्प्लीट डायग्राम व्हेन द क्वेश्चन सेज ड्रॉ द डॉट क्रॉस शोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स में तो इनर शेल भी बनाने पड़ेंगे लेकिन जब वो आपसे सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं तो फिर जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में नहीं गए वो भी ड्रॉ करोगे आप वैलेंस तो फ्लोरीन के आउटर शेल में देखें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल तो अगर एक डॉट इधर आ गया तो 3 पेयर्स आपको सारे फ्लोरीन को देने हैं सो ईच फ्लोरीन बिकॉज मैंने फ्लोरीन को डॉट से दिखाया है ईच फ्लोरीन गेट्स 3 पेयर्स एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स हैव टू बी शोन कंप्लीट कोई पेयर मिसिंग नहीं होना चाहिए हाइड्रोजन के पास तो होते ही नहीं है तो ये इसका डॉट क्रॉस हो गया अब इसका जो डिस्प्लेड बनेगा it would be like 3 single covalent bonds in ammonia 1 dative bond 3 single covalent bond in BF3 and the pair of electrons still has to be shown dative bond में displayed में भी electrons लगाएंगे और dot cross में arrow भी लगाएंगे and the whole thing is not charged so if you want to put brackets I mean out of practice हम brackets लगाते हैं dative molecules पे पावर 0 होगी आपने charge 0 दिखा देना है अगर ब्रैकेट लगाएगी तो चार्ज दिखाना पड़ेगा 0 अदरवाइज ब्रैकेट मत लगाएं ठीक है
तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें, वो मैंने अभी एंड के लिए नहीं छोड़ी, कल आते उसको करेंगे, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl6 डायमर, दैट्स एन एग्जाम सिलेबस। और उसके अंदर बॉन्डिंग चेंज होती रहती है, उसके वेपर्स में डेटिव बॉन्ड है, सॉलिड स्टेट में डिफरेंट है, कल वो करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कोई क्वेश्चन वोट आप लोग पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्लास है। नो सर। दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। जी अल्लाह हाफ़िज़। जी जी अल्लाह हाफिज।